गुड मॉर्निंग 7th क्लास 5.2 कर रहे हैं ਆਪਾਂ 5.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਹੈਨਾ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 5.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲਓ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੇ A ਸਮਾਂਤਰ B ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ 5 if A parallel B then angle 1 equal to angle 5 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ A B ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਐਂਗਲ 1 ਹੈ ਐਂਗਲ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो एंगल 1 is equal to एंगल 5 why क्यों है ये तो देखो अगर A B दे पैरेलल है ठीक है असी भी क्या सी पैरेलल लाइंस होनियां चाहिए और एक ट्रांसवर्सल विचों निकल के जांदा पे इन्होंने ਇਹਦਾ नाम नहीं लिखिया सी अपने कोलों ਇਹਦਾ नाम लिख लेने हैं T A B दे पैरेलल है ते T विचों एक काटवीं रेखा निकल के जा रही है ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंगल 1 है ठीक है लो ਜਿਹੜਾ एंगल 1 है ਇਹ एंगल 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਲੂ ਕੀਤੇ ਐਂਗਲ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ एंगल 1 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ एंगल 5 ਕੌਣ ਹੈ एंगल 5 ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ तो जो एक बारला हुंदा एक अंदरला हुंदा एक एक्सटीरियर हुंदा एक इंटीरियर हुंदा किहड़े एंगल कहंदे असीं उन्हां नूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंगल 1 है ਤੇ एंगल 5 है ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ एंगल 1 equal to एंगल 5 because corresponding angles are equal और पंजाबी वाले की लिखणगे पंजाबी वाले लिखणगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 रीजनों की देणगे क्योंकि संगत कोणा दे जोड़े बराबर हुंदे हन संगत कोणा दे जोड़े बराबर हुंदे हन ठीक है जी लो तो जो हुण तुसी इनू देखोगे ना जब तुसी इस वीडियो नू वेखोगे तो तुसी कम्युनिटी लिंक दे विच जाके देखना एक होर लिंक दिता होगा जिहदे विच इहदा सारा PDF पिया होगा तुहाडे लई ठीक तुसी उस PDF दे विचों अगर तुहानू कोई डाउट रह जांदा है उथों क्लीयर कर सकते हैं पूरी 5.2 ਦਾ PDF ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਐਂਗਲ 4 ਬਰਾਬਰ ਐਂਗਲ 6 ਇਫ ਐਂਗਲ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 6 ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ A ਸਮਾਂਤਰ B ਦੈਨ A ਪੈਰਲਲ B ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਣ 4 ਕੋਣ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंगल 4 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ एंगल 6 ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ A B ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 4 ਤੇ 6 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ 4 ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ 6 ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਨਾ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੇਢੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ alternate interior angles तो तुसी की लिखोगे as
की लिखिया सी देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ठीक है क्यों है असं लिखिया दे आर आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਤਾਂ A ਸਮਾਂਤਰ B ਹੈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ A ਸਮਾਂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ B ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ 4 ਤੇ 5 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ A ਪੈਰਲਲ B ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ 4 ਤੇ 5 ਐਂਗਲ 4 ਤੇ ਐਂਗਲ 5 ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 180 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ A ਪੈਰਲਲ B ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि as angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and नाल दस देवांगे कौन ने and they are angles नाल mention कर देने हैं interior angles on the same side of transversal and their sum ਇਹਨਾਂ ਦਾ sum ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ and their sum is 180 degree ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ 4 ਅਤੇ ਐਂਗਲ 5 ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਕੀ ਹੈ B ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ A ਕਿਹਦੇ B ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੇਅਰ ਪੁੱਛੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਚਾਰ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ एक्सटीरियर एक एंटीरियर बट सेम साइड का तो केड़ा पेयर हो गया देखो इधरों स्टार्ट करो एंगल 1 एक्सटीरियर है एदा जिहड़ा कोरस्पोंडिंग एंगल केड़ा होगा 5 एंगल 1 दा संगत कोण केड़ा होगा 5 तो केड़ा आ गया एंगल 1 दूसरा केड़ा आ गया एंड एंगल 5 एक हो गया ठीक है हुण आओ दूजे पासे एंगल 4 एंड एंगल 8 एंगल 4 एंड एंगल 8 हो गए इधर वाले हो गए हुण आ जाओ इधर वाले पास से 6 एंगल 6 बार वाला है एंगल 6 एंड एंगल एदा केड़ा होगा एंगल 2 इधरले पासे आ जाओ अपने कोले एंगल 7 एंड एंगल 3 ठीक है जी तो इस तरीके दे नाल तुहाडे कोले किन्ने पेयर आ गए 4 पेयर आ गए हुण उस तो बाद अगला पेयर किहदा पुछदा पिया देखो ध्यान देना पेयर ऑफ आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदरले एकांतर कोणा दे जोड़े अंदरले होने चाहिए ते एकांतर आल्टरनेट मतलब टेढ़े केड़े 3 ते 5 एंगल 3 एंड एंगल 5 दूसरे पासे 2 एंड एंगल 8 2 एंड एंगल 8 उस तो बाद काटवी रेखा दे इक्को पासे पे अंदरूनी कोण
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਬਟ ਕੀ ਹੋਣ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 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 ਹੈ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ 2 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਐਂਗਲ 2 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋਣ ਬਟ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ? ਐਂਗਲ 3 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ, ਅੱਛਾ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਾੜਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। तो पहला इत्थे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, काड़वियां रेखावां, कौन कौन? 1 ते 3, 4 ते 2। तो केड़ा लिख दवा? एंगल 1 एंड एंगल 3 इक हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 2। लो इधरले पासे दा सारा हो गया। हुण थल्ले आ जाओ, थल्ले कौन बनदा पिया? थल्ले तुहाडे कोल ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनदियां पईयां, एंगल 7 एंड एंगल 5 ते दूसरे पासे 6 ਤੇ 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। और इस तरीके दे नाल तुहाडा ये की हो गया? सारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, तुहानू ये जरूर आना ही आना है और इनू वधिया तरीके दे नाल तैयार करियो। चलो हुण आपां थर्ड क्वेश्चन ते आ गए। P पैरेलल Q है तां बाकी कोण पता करो। P पैरेलल Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो P क्यू दे पैरेलल है, विचों एक ट्रांसवर्सल निकल के जा रहा है। मैं मान लेने ओदा नाम की है अपने कोलों टी। असी की करने हैं? सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल ई, एफ, ए, बी, सी, डी सारे फाइंड करने हैं। सिर्फ एक एंगल दिता तुहानू 125 दा। अच्छा हुण ध्यान देना, देखो असी की लिखांगे जिद्दां उहने कहा होया, असी इदां स्टार्ट करांगे। पी पैरेलल क्यू एंड टी इज ट्रांसवर्सल। पंजाबी वाले इत्थे की लिखणगे? पंजाबी वाले लिखणगे इहदे विच P समांतर क्यू है अते T काटवीं रेखा है। ठीक है जी। जिस तो बाद हुण शुरू हो जाओ। देखो ये दोनों तो पैरेलल हो गई, ये विच काटवीं रेखा हो गई है ना, ट्रांसवर्सल हो गया। आ तुहाडे कोले 125 है, ये किधरले पासे पे? बाहर वाले पासे पे, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो ये जेड़ा एक्सटीरियर एंगल है ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल के बराबर है। केड़े? सी दे, है कि नहीं? तो तुहाडे कोले तुसी की लिखोगे? देयरफॉर, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन की होगा? की ने केड़े एंगल ने? संगत कोण। ते संगत कोणां नूं इंग्लिश दे विच की कहंदे आ? संगत कोणां दा दे जोड़े या दा जोड़ा। और इंग्लिश वाले की कहणगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लो तुहाडे कोले की हो गया? एक वैल्यू निकल गई, किहदी? एंगल सी दी एक वैल्यू निकल गई। अच्छा हुण ध्यान देना, देखिए जेड़ा एंगल सी आ वो किहदे बराबर है? एंगल बी दे। क्यों एंगल सी एंगल बी दे बराबर क्यों है? एंगल सी ते एंगल बी इस करके बराबर ने क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ने। फिर तुसी की लिखोगे? नेक्स्ट, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 125 डिग्री। एदा रीजन की दोगे? एदा रीजन दोगे सिखर सन्मुख कोणां दे जोड़े। सिखर सन्मुख कोण, जिन्हों इंग्लिश दे विच की कहने असी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो केड़े केड़े निकल गए तुहाडे कोले? देखिए एक सी निकल गया, एक बी निकल गया। ठीक है, अच्छा जी हुण नेक्स्ट किद्दां करिए? हुण देखो ध्यान देना फर्दर। हुण आपां की करना? देखो जिहड़ी क्यू आ वो एक स्ट्रेट लाइन आ। ठीक है, जेकर ये स्ट्रेट लाइन है इहदे उत्ते जिहड़े एंगल होणगे उन्हां दा सम कितना होऊगा? 180 डिग्री। तुहानूं किहड़ा लभ गया? बी लभ गया। हुण तुसीं डी लभ लूंगे। तुसीं की लिखोगे? तुसीं लिखोगे नाउ, नाउ नूं किद्दां लिखांगे? हुण एंगल
प्लस एंगल डी बराबर किदे 180 डिग्री दे, कारण रेखी जोड़े। रेखी जोड़े नू इंग्लिश दे विच की कहंदे है? लीनियर पेयर। ठीक है जी। लो बी दी वैल्यू असी हुणे हुणे कड्डी, किन्नी? 125। 125 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, तो एंगल डी के इक्वल आ गया 180 माइनस 125। एंगल डी के बराबर आ गए, 10 चो 5 गए 5, इत्थे बच गए 7, 7 चो 2 गए 5। एंगल डी कितना आ गया तुहाडे कोले? 55 डिग्री। ठीक है, तो ये तुहाडे कोले डी भी निकल गया। हुण डी निकल गया, डी दे नाल कौन निकल जूगा? ए। क्यों? दोनों की ने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर असी की लिखांगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन भी देना पैना, सिर्फ आंसर कड्डन ते नहीं होना। रीजन की देवांगे? सिखर सन्मुख कोण। ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? vertically opposite angles। ठीक, लो हुण तुहाडे कोले ए भी निकल गया। हुण किहड़ा बच गया? ई। ए ते ई आपस दे विच किदां? देखो ए इंटीरियर है, ई एक्सटीरियर है, और किदां है तुहाडे कोले? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो असी की लिखांगे? नाउ हुण की लिखांगे? एंगल E इज इक्वल टू एंगल A, कारण संगत कोण। और संगत कोण नू इंग्लिश की कहंदे है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो A का मुल भर दो, हुणे हुणे A की वैल्यू कड्डी है, देयरफॉर एंगल E कितना आ गया? 55 डिग्री। इनू भी की करया? बंद करया। ठीक है, अच्छा हुण E निकल गया, E दे नाल F निकल जूगा। क्यों? E ते F आपस दे विच क्यों बराबर है? हुण तुसीं लिखोगे देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन की दोगे? रीजन दोगे तुसीं किहड़े ने? देखो E ते F किहड़े ने? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सिखर सन्मुख कोण। सिखर सन्मुख कोण की कहने इन्हां नूं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल असीं की कीता? सिर्फ सानू एक एंगल दिता सी, असीं बाकी सारे लभ ले। क्यों लभ ले? क्योंकि लाइन्स सानू की दित्तियां होईयां सी? पैरेलल दित्तियां होईयां सी। आओ हुण क्वेश्चन नंबर 4 करिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उहदे दो पार्ट है। ठीक है, पहला असीं फर्स्ट पार्ट करांगे, फिर सैकेंड पार्ट करांगे। हुण देख लैंदे की गिवन है। जे एल समांतर एम है, मतलब तुहानू एल पैरेलल एम दोनों केसिस दे विच दिता होया। ठीक है, फाइंड एक्स इफ एल पैरेलल एम। तो एक्स का मुल पता करो। जिहड़ा एक्स है दोनों फिगर्स दे विच ओदी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आओ पहला एदे विच आओ, ध्यान नाल देखो। ये तुहाडे कोले बाहर वाला कोण एक्सटीरियर एंगल है, ये तुहाडे कोले इंटीरियर एंगल है, पर किद्दां पए होए ने? एक दूसरे दे ऑपोजिट पए हुए ने, इन्हां दा कोई रिलेशन नहीं बनता। बट जेकर मैं इत्थे एक एंगल मान ला, देखो जेकर मैं इत्थे एंगल 1 मान ला, इत्थे कोई एंगल 1 अपने कोलों सपोज कर लिया, तो जेड़ा एंगल 1 है ते 110 आपस की ने? इक्वल ने। क्यों? लाइन्स पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, एक बाहर ला एक अंदरला। ए जे एंगल की हुंदे ने? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेम साइड ते पिया होया संगत कोण। तो मैं की लिखूंगी? मैं लिखांगी एल पैरेलल एम एंड T is transversal. T is transversal. पंजाबी वाले की लिखणगे? L समांतर M है अते T काटवी रेखा है, जिस करके एंगल 1 के इक्वल आ गया 110 दे आ गया। कारण संगत कोण। संगत कोण। ते संगत कोण नू इंग्लिश की कहने असी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लो तुहाडे कोले एंगल 1 दी वैल्यू निकल गई। हुण देखो 1 ते x आपस दे विच की ने? ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे ने। ठीक है, तो मैं की लिखा? एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ
हुण की लिखांगे एंगल 1 प्लस एंगल x बराबर किहदे 180 डिग्री दे कारण रेखी जोड़ा मतलब लीनियर पेयर। लो केड़ी वैल्यू पता तुहानू 1 दी पता है पर दो 1 दी वैल्यू कितनी आई सी 110 प्लस एंगल x किहदे बराबर आ गया 180। लो जी एंगल x किहदे बराबर आ गया 110 इधर प्लस हो रहा है दूजे पासे जाके की हो जाऊगा माइनस 180 माइनस 110 एंगल x किहदे बराबर आ गया तुहाडे कोले 70 डिग्री। लो फर्स्ट जो डायग्राम सी उहदे तो असीं एंगल x की वैल्यू कढ ली। अच्छा जी सैकेंड देखो तुहाडे कोले L M दे पैरेलल दिता होया ठीक है। लो असीं मान लैंदे आ जिहड़ा उपर है उपर वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल है T ठीक है। लो फिर पहला इनू इदां लिख ली जरा L पैरेलल M एंड T इज दी ट्रांसवर्सल। इंग्लिश लिख लिया पंजाबी दे विच की लिखांगे पंजाबी दे विच लिखांगे L समांतर M है अते T काटवीं रेखा है। हुण जरा ध्यान नाल देखो जेकर L M दे समांतर है ते T काटवीं रेखा है आ देखो 100 बाहर पिया X अंदर पिया और सेम साइड ते पिया होया है ना। तो की लिखांगे मैं की लिखां एंगल X इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन किहड़े एंगल ने ये तुहाडे कोले ने संगत कोणा दे जोड़े बराबर हुंदे हन। इंग्लिश वाले की लिखणगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ठीक है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इत्थे इत्थे दा x की वैल्यू बड़ी जल्दी निकल गई। हुण आओ क्वेश्चन नंबर 5 ते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है दो कोणा दियां भुजावां समांतर हन जे एंगल ए बी सी। देखो दो कोण हैगे दो एंगल्स दिते हुए तुहानू उन्हां दियां आर्म्स की ने पैरेलल ने। देखिए किदां जिहड़ी ए बी है वो किहदे पैरेलल है इधरों दी डी ई दे पैरेलल है। अच्छा ते जिहड़ी बी सी है वो किहदे पैरेलल है ई एफ दे पैरेलल है। तो मैं इत्थे पैरेलल साइन पा दिंदी हां ए दे पैरेलल है और दूसरी इहदे पैरेलल है ठीक है। फिर की कहंदा पिया एक एंगल दिता पिया तुहानू किहड़ा एंगल ए बी सी की वैल्यू दी हुई 70 डिग्री। हुण किहड़ी किहड़ी कड्ढनी है डी जी सी असी एदी वैल्यू फाइंड करनी है ते डी ई एफ असी एदी वैल्यू भी फाइंड करनी है ठीक है। लो हुण सब तो पहला असी स्टार्ट किद्दां करांगे पहला असी एदी वैल्यू निकाल लांगे। मान लो ए वाला एंगल 1 है ते ए वाला एंगल कितना है 2 ठीक। डायग्राम दे विच भी लिख देना ते नाल दी नाल सपोज भी कर लेना कि मान लो केड़ा पहला एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल 1। मान लो नू इंग्लिश वाले की लिखणगे से या लेट। और ऑल्सो एक होर भी मनो केड़ा एंगल डी ई एफ कितना उन्होंने मान लो एंगल 2 डी ई एफ नू कितना मान लो एंगल 2 ठीक है। हुण देखो ए बी जिहड़ी है वो डी जी दे समांतर है ए बी पैरेलल टू ए बी जिहड़ी पैरेलल है किहदे डी ई। मैं खुद नहीं कह रही उन्हें क्या है कि भुजावां समांतर है। ते बी सी की है अते बी सी एक काटवीं रेखा है एक काटवीं रेखा है। मतलब इंग्लिश वाले की लिखणगे ए बी पैरेलल डी ई एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो कहंदा हुण की करो अब बाकी फोटो नू भूल जाओ थले है इस सारी नू भूल जाओ बस उपर उपर वाली नू याद रखो। 70 1 दे इक्वल क्यों होया या एंगल 1 70 दे इक्वल क्यों होया। देखो एक इंटीरियर च पिया एक एक्सटीरियर च पिया और दोनों सेम साइड ते पे ने तो केड़े हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो मैं की लिखा एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री नाल रीजन की लिख दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और पंजाबी वाले की लिख देंगे संगत कोण।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਐਂਗਲ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਐਂਗਲ 1 ਦਾ ਨਾਮ DGC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 70 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਐਂਗਲ 2। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਂਗਲ 2 ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ BC ਜੋ ਹੈ that is parallel to EF है ना ਤੇ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ BC ਜੋ ਹੈ that is parallel to EF and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DE ਕੀ ਹੈ is a ट्रांसवर्सल पंजाबी वाले की लिखेंगे DE की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ। अच्छा तो 1 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ क्यों है देखो बाहर आ है पैरेलल लाइंस एक बाहर ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ और सेम साइड है ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 रीजन संगत ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एंगल्स है ना। अच्छा जी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स चलो एंगल 1 की वैल्यू तुसी कड्डी हुणे 70 है ना तो की लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल 2 कौन है एंगल DEF कितना आ गया तुहाडे कोले 70 डिग्री। तो इस तरीके दे नाल तुसी एंगल 2 DEF भी निकाल लिया। हुण आपां आ गए ने लास्ट क्वेश्चन ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ डिसाइड वैदर फैसला करना है तुसी चार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायग्राम बने हुए फैसला करके की दसना है कि LM ਦੇ पैरेलल है कि नहीं है LM ਦੇ समांतर है कि नहीं है। आ जाओ जी फोटो नंबर 1 ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ L ਤੇ M ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ L is parallel M नहीं मैथमेटिकली सॉल्व करके दसना है। तो देखो L M है ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ट्रांसवर्सल है काटवीं रेखा है N ਕਿਹੜੇ ਦੋ एंगल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇੰਟੀਰੀਅਰ एंगल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਪਏ ਹੋਏ ट्रांसवर्सल ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ट्रांसवर्सल ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 44 plus 126 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਓ ਟੋਟਲ ਕਰੋ 6 4 10 ਇੱਕ ਹਾਂਸਲ 6 ਤੇ 1 7 1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਮ 170 ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ 180 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ angles on same side of transversal is not 180 degree, therefore L is not parallel to M। ਲਾਈਨਾਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਜੋ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ 170 ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ L समांतर M नहीं है। ठीक है जी ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ क्वेश्चन नंबर 2 ਤੇ। क्वेश्चन नंबर 2 ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਐਂਗਲ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ पेयर मैं की करा एंगल 1 plus 75 कितना हो जाऊगा 180 कारण की देवांगे लीनियर पेयर नु पंजाबी वाले की लिखणगे रेखी जोड़ा लो एंगल 1 दी वैल्यू कड्डो कितना आ गया 180 minus 75 एंगल 1 देखो कितना आ गया 10 चों 5 गए 5 किन्ने बच गए 7 7 तो 7 गए 0 तो एंगल 1 दी वैल्यू कितनी आ गई 105 ठीक है। अच्छा हुण एंगल 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 105 ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ 75 ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬਟ ਪਰ एंगल 1 ठीक है जो है 105 डिग्री
ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਜ਼ alternate interior angles are not equal, बराबर नहीं है, सो L समांतर M, L समांतर M कदी भी नहीं होगी। तुसी की लिखोगे पंजाबी वाले, क्योंकि एकांतर अंदरूनी कोणा दा एक जोड़ा आपस बराबर नहीं है, एक दा मुल 105 है, एक दा मुल 75 है, तो एल एम दे समांतर नहीं होवेगा। ठीक है, अच्छा जी। उस तो बाद थर्ड क्वेश्चन का मैं सिर्फ हिंट देना, देखो तुहाडे कोले एन ट्रांसवर्सल है, तुसी ए वाला एंगल मान लो, एनू मान लो 1, ठीक है। तुसी 1 दी वैल्यू कड्डो जिद्दां असीं इत्थे कड्डी, 1 + 57 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 दी वैल्यू आ जाऊगी। जेकर एंगल 1 दी वैल्यू भी 123 आंदी पई है तो तुसी की कहना, हाँ जी जी, क्योंकि एकांतर अंदरूनी कोणा का एक जोड़ा बराबर है तो एल पैरेलल एम है। जे एकांतर अंदरूनी कोणा का जोड़ा बराबर नहीं आ रहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, फिर तुसी क्या लेना, एल पैरेलल एम नहीं है। ये खुद करना हुण, ठीक है, कर लेना, मैनू पता तुसी। उस तो बाद फोर्थ क्वेश्चन, एदा भी मैं तुहानू सिर्फ की देना, हिंट देना। देखो ए 72 है, ए भी कितना होगा तुहाडे कोले, ए भी कितना होगा 72, ठीक है। तो ए 72 है भी 72, कारण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पहला ये वाला एंगल कढ लिया, उस तो बाद इन्हां दोनों दा सम करो, ए ते ए दोनों किहड़े ने तुहाडे कोले, इक्को पासे पे अंदरूनी कोण है ना, तो कितना आना 98 + 72 कितना होना चाहिए तुहाडे कोले 180। चेक करो 180 आंदा कि नहीं आंदा। ये हो गया 10, ये हो गया 170, नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू 180, इसलिए एल पैरेलल एम नहीं है। ठीक है जी, पूरा इहदा रीजन लिखना, थर्ड का भी फोर्थ का भी। तो इस तरीके दे नाल तुहाडा पूरा 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और इन्हां नूं अपनी कॉपीज ते बहुत सोहणे तरीके दे नाल कर लेना। ठीक है, कम्युनिटी लिंक दे विच इहदा पूरे दा पूरा PDF पिया होगा। थैंक यू सो मच।